Dear students and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I, Shanse Fatma, Vice President, Character Building Society, FUCP, warmly welcome you all to this event organized by Character Building Society, FUSH. It is both an honor and a privilege to host you today at this special event. We are gathered here today not only to seek knowledge and inspiration, but also to reflect on values that shape our character and future. To begin this event, with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, I would like to call Ali Sanan to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब के पास जा रहा हूँ, वही मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो नेक लोगों में से हो। चनाचे हमने उन्हें एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। फिर जब वो लड़का यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा, बेटे मैं ख्वाब देखता हूँ कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब तुम सोच कर बताओ तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने कहा, अब्बा जान आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। चनाचे वो अजीब मंज़र था जब दोनों ने सर झुका दिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल गिराया और हमने उन्हें अचानक आवाज़ दी, ए इब्राहीम तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। यकीनन ये एक खुला इम्तिहान था और हमने एक अजीम ज़बीहे का फ़िदिया देकर उस बच्चे को बचा लिया। और जो लोग उनके बाद आए उनमें यह रवायत कायम रखी, सलाम हो इब्राहीम पर, हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah. The theme of today's event, Who is my Ismail alayhi salam? The story of Prophet
Ibrahim alayhi salam and his son Ismail alayhi salam is one of profound faith, sacrifice, and unwavering obedience to the will of Allah. Beyond the historical narrative lies a timeless question: who or what is our Ismail today? What are we willing to sacrifice for a greater purpose? For our values, for truth, or for a calling that transcends a personal comfort? And what are its implications in the lives of medical professionals? It is a topic that challenges our inner selves, and who better to guide us through this reflection than one of the most inspiring figures in the medical and academic community. We are deeply honored to welcome Professor Dr. Fawzia Abdul Samad, a distinguished medical oncologist and head of the oncology department at Fauji Foundation Hospital, Rawalpindi. With decades of clinical excellence, academic leadership, and compassionate service, Professor Dr. Fawzia Abdul Samad has been a source of strength and hope for the countless patients and families. She is known not only for her medical expertise, but also for her holistic approach to patient care, emphasizing empathy, dignity, and resilience in the face of adversity. Beyond her clinical roles, she is an advocate for ethical medical practice, patient education, and mentorship for young medical professionals. We are truly grateful to have her share her wisdom with us today. Without further delay, please warmly welcome Professor Dr. Fawzia Abdul Samad to share her reflections on our topic, Who is my Ismail alayhi salam? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very warm welcome. First of all, whenever I come to such symposia, those who are organizing, they are always concerned attendance kitni hogi. But whenever I come, तो आपको देख के the first thing that comes to my mind is नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी बढ़ते मियाँ से जरा न हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज गहसानी. तो आपको देख के तो आपको देख के डेफिनेटली मुझे इकबाल के इस शेर और इसके दोनों मिसरे एक हकीकत लगते हैं कि वाकई इस कश्ते वीरा से हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि ज़रा सी नम हम फेंकते हैं तो डेफिनेटली आगे से जो आपके आमाल की बहार और जो आपके जैसे कहते हैं ना डेडिकेशन की बहार मुझे मिलती है और काफ़ी टाइम तक मिलती रहती है, दैट इज़ commendable. So first of all, thank you very much. इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह we have been able as members of faculty of Farsh to inculcate a spirit of जैसे कहते हैं ना a culture of quality and a culture of integrity and a culture of professionalism and a culture of grooming. And I think your presence in this hall for a talk which is totally not related directly to your academics to sound good, but actually when you will go through it, you will see that actually this topic is so closely related to us in our clinical practice that we never thought it might be so closely related. Like I read this article say last year somewhere or day before that or year before that, or after that I designed a talk and that was mainly for ladies. But when I thought about it, I felt that it is much more related to my profession than it is related to general lady officers in the ladies club. So at that time I wish कि हम कभी इस पे अपने बच्चों के साथ बात कर सकें और अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में बता सकें. एक कॉन्सेप्ट, दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं जब भी रोस्ट्रम पे आती हूँ आप में से कितने लोग हैं जो तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानते हैं? अच्छा, अब मुझे बताएं कितने लोग हैं जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानते हैं? Okay, so you will be surprised to know कि actually हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत तुफैल के रिज़्क़ानों के सगे या रिश्ते के भतीजे थे, right? So हज़रत तुफैल रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, वो वापस अपने कबीले में गए और उन्होंने अपनी कबीले में दावत दी. उस हुजूम में जिसमें वो दावत दे रहे थे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए थे. तो वो थोड़ी देर बाद कहते थे चचा और बताएं, चचा और बताएं. तो हज़रत तुफैल रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि
हदीस उनके लिए, सही है? लेकिन व्हाट अबाउट हज़रत फैमिली सारानो, क्या वो सारी की सारी चीज़ें उनके लिए भी सत्य का मौजब है? यस, 100%। तो मैं अक्सर सोचती हूँ अगर एक अबू हुरैरा भी इस महफिल से निकल आया तो हमारे सत्य का काउंटर कहाँ चला जाएगा? ऐसा अबू हुरैरा जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे चाहते हैं। एंड बिलीव यू मी, हमने चीज़ों को अलग कर दिया। वी हैव मेड थिंग्स सेपरेट। हमारा ख्याल है कि मेडिसिन सेपरेट है, अब तो खैर चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब दिस एटीट्यूड हैज़ बीन अ रेगुलर कंपोनेंट मेडिकल एजुकेशन में, और इनफैक्ट जो एटीट्यूड का परसेंटेज है दैट हैज़ बीन इंक्रीज ड्रामेटिकली। बट प्रीवियसली होता था कि नॉलेज वाज कंसिडर्ड टू बी द मेजर कंपोनेंट। Now we think attitude is one of the major components of your being a clinician, right? So हम start करते हैं basically, और ये जो theme है वो is your Ismail. It is based on an article जो मैं आपको end पे बताऊंगी कि वो हमने कैसे उठाई। So हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इकट्ठे होने के लिए पहले हम ये सोचें कि हमारे कैंपस में कुछ अहम मौके आते हैं। रिसेंटली हमने कौन से 2 मेजर इवेंट्स किए थे? कौन बताएगा? मार्च में स्टूडेंट्स वीक होता है ना, मार्च अप्रैल, स्पोर्ट्स वीक, और उसके बाद हमारा फन फेयर। जब हम स्पोर्ट्स वीक की तैयारी करते हैं तो कैसे करते हैं? क्या होता है स्पोर्ट्स, जस्ट बिफोर द स्पोर्ट्स वीक हाउ डू यू फील? एक्साइटेड, मीटिंग्स हो रही हैं, सजेशंस हो रही हैं, यूं डेकोर करें, ये फंक्शन करें, इसमें ये इवेंट करें, इसको यूं करें, ऐसे ही है। इसीलिए फन फेयर होता है तो एवरीबॉडी इज सो preoccupied with their ideas, मैंने क्या सॉल्व, I should be different, I should plan things differently, I should stand out among others, ये सारी चीजें हैं। और होता क्या है कि उस सारी प्लानिंग में you become part of that field, है ना? उस environment में आपके इमोशंस भी उसी तरह चले जाते हैं। जब रीडेबल मैं तो बहुत करीब खड़ी हूँ, मेरा टेक्स्ट डिस्टॉर्ट हो रहा है, इज इट फाइन विद यू? उर्दू का ओके। लेकिन और फिर हमारा दिन उसी कैफियत में चला जाता है, एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक, फुल ऑफ आइडिया, फुल ऑफ क्रिएटिविटी। फिर क्या होता है उसके बाद? एग्जाम आ जाता है। आप फीलिंग क्या होती है? ओह माय गॉड, किसी का दिल डूब रहा है, किसी को रात को वेट ड्रीम्स आ रहे हैं, है ना? कोई परेशान है, ऐसा ही होता है। इससे साबित हुआ कि एक्चुअली जो हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट होता है वो हमारे इनर एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। यू ऑल एग्री? यस। और जो हमारा आउटर एनवायरनमेंट होता है, अगर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता हो, जैसे मिसाल के तौर पे वो फन फेयर हो, वो हमारे लिए स्टूडेंट्स वीक हो, तो फिर हम क्या करते हैं? हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ना। ओके, सो अब मुझे ये बताइए कि अहले ईमान के दिल के मौसम कौन से होते हैं? अहले ईमान के दिल के मौसम कौन से होते हैं? कौन सा रिसेंटली गुजरा दिल का मौसम? रमजान। यस। और क्या होता है रमजान में? क्या कैफियत होती है हमारी? एक सहरी के टाइम एक एनवायरनमेंट होता है, वैसे भी रात को अंधेरा होता है आम दिनों में, है ना? रात को पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, बट यू कैन फील द मूव। आपको लगता है कोई सब घर की लाइटें ऑन होती है, कहीं से आवाज़ भी आ रही होती है, फिर अनाउंस हो रहा है सहरी कर लें, सहरी कर लें। फिर अफ्तारी में तो बहुत ही मज़ा आता है, कभी कहीं से ट्रे आ रही है, कभी हम कहीं ट्रे भेज रहे हैं, वो सबसे मज़े का सीन होता है जब अनएक्सपेक्टेड ट्रे आ जाए, है ना? फिर इन एडिशन टू दैट जब हम पढ़ते रात में जाते हैं तो वी हैव तरावी की महाफिल होती है, फिर हम एक्स्ट्रा, देखिए वही हम होते हैं ना। आम दिनों में मैं अपनी बात करूंगी, आप लोग तो माशाल्लाह, एक तो आप लोग को देखा, आई ऑलवेज फील यू आर ब्लेस्ड बिकॉज व्हाट आई लर्न एट द एज ऑफ 40 प्लस, यू आर लर्निंग इट एट द एज ऑफ 20 प्लस। सो दिस shows you guys are chosen, no doubt you are chosen. So be clear about it, you are the chosen ones. You just have to identify and you have to perform accordingly. So उसके बाद क्या होता है? वही हम होते हैं, आम दिनों में मुझसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जा रही थी, फिर हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम तहज्जुद के लिए उठ जाते हैं, हम रात को तरावी भी पढ़ लेते हैं। अच्छा खासा टाइम होता है तरावी का, एक पारे से ऊपर आप पढ़ते हो। आम दिनों में आप सोच सकते हो पढ़ने का? नो, वो एक कैफियत होती है कि वो जब आती है तो सारे लोग कर लेते हैं। उसके बाद भी अच्छा, अब जब रमजान गुजर गया तो उसके बाद क्या फीलिंग होती है? कोई रिग्रेट होता है, कोई अचीवमेंट? एनीबॉडी? कभी रिग्रेट हुआ? यस, ये सोचा था, ये नहीं किया। और कभी कभी बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट ही होती होगी, जरूरी तो नहीं, कुछ लोगों को होती होगी, है ना? सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने उसको प्लान
ये वाला मौसम आया हमारे पास, और अब इस मौसम में हमारे पास क्या है? What we have? We have feelings, we have emotions, we want to be with them, और finally हमें एक अल्लाह की चाहत का महीना है जब लबैक अल्लाह लबैक आप सुनते हैं तो आपकी कैफियत होती है. But we have to think that how as a doctor ये जो मेरी अल्लाह की चाहत है, ये जो मेरी फीलिंग है, ये जो मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, ये मुझे एज अ डॉक्टर कैसे अफेक्ट कर रही है? Can it affect me as a doctor? Yes, no? How come? We'll see. Okay, we'll see. ठीक है? It can. But the first thing is that you are lucky. Lucky because today is day 2 and you can plan. और ये पूरा जो अशरा है, आप इसको as a clinician, as a doctor, as a student plan कर सकते हैं कि आपने maximum इसमें से कैसा लेना है as a doctor, as a clinician. Right? So, हमारे अपने अब हज के लिए जा रहे हैं और हमारा क्या दिल चाहता है? हम भी इनके साथ चले जाएं, इनके सूटकेस में कहीं से एडजस्ट हो जाए, ये हमें साथ लेकर है ना, दिल चाहता है इनके सूटकेस में एडजस्ट हो जाए. दो इट कांट हैपन. दिल तो कुछ नहीं चाह सकता है. दिल चाहता है कि इनके सूटकेस में एडजस्ट होकर उनके साथ चले, स्पेशली अगर आपके घर से कोई एहराम पहन के निकल रहा है. सो यू रियली हैव दीज सॉर्ट ऑफ इमोशंस इन योर हार्ट. हमारे उलमा क्या कहते थे? वो कहते थे कि जितने भी पॉजिटिव इमोशंस आपके होते हैं ना, उनको इस्तेमाल किया करें. बीइंग इमोशनली ड्रिवन इज अ वीकनेस. आपको सिर्फ इमोशंस पे ड्राइव ना होने चाहिए. योर सेरेब्रल हेमिस्फीयर शुड बी देयर एंड शुड थिंक. But being emotionally rich is a very big blessing because then you can connect with people. तो ये जो आपके emotions develop हो रहे हैं और आपको हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं तो हज पे नहीं जा रहा, तो आप यहाँ पे भी बैठ के contribute कर सकते हैं. और वो कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे. ठीक है? और इन सारे जो emotions हैं इनको हमने यूज करना है अपने कहाँ पे? अपने वर्क प्लेस पे. राइट? और फाइनली हमने रिग्रेट नहीं करना. हम तो रिग्रेट करते हैं कि वो तो रिग्रेट करता नहीं है. जब आपने हर चीज़ में आपकी सिचुएशन रखी है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम फील करेंगे इन इमोशंस को और हम उनके बेसिस पे किसको चेंज करेंगे? अपने अमाल को चेंज करेंगे. गुड, ग्रेट. सो एज मोमेंट डॉक्टर हम जब किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या किसी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हम कब अडॉप्ट करते हैं? एडल्ट लर्नर्स, जब हमें पता हो कि वो हमसे रेलेवेंट है. अब अगर मैं आपको बिल्कुल इररेलेवेंट कोई चीज़ पढ़ाना शुरू कर दूँ, मैं आपको क्या मैं आपको यहाँ पे स्टिचिंग की क्लास देना शुरू कर दूँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि कौन सा स्टिच कैसे लिया जाता है एम्ब्रॉयडरी में. हाउ मेनी यू विल बी इंटरेस्टेड? नो वन. इन एडिशन टू रेलेवेंस आपको एक और चीज़ क्या चाहिए थी कि इम्पॉर्टेंट, ये मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम इसकी रेलेवेंस और इम्पॉर्टेंस देखेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि ये जो चीज़ है ये हमारे बिहेवियर को एक्सेप्ट कैसे करेगी. और इसीलिए आज हम इधर है कि हम ये देखें कि ये जो चीज़ जो हमारे पास आ रही है, ये जो इमोशन हमारे पास आ रहा है, हाउ इट्स गोइंग टू चेंज अस एज क्लिनिशियंस. ठीक है? सो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम इसकी बात करेंगे फजाइल और इम्पोर्टेंस की, और उसके साथ हाउ दीज आर गोइंग टू ड्राइव अस और मेरे प्रोफेशनल टारगेट्स कौन से होंगे. 19-20 के फ़र्क के साथ अब आप कहेंगे मेरी स्पेशलिटी, चाहे आप मेडिसिन में हो, चाहे आप डेंटिस्ट्री में हो, नर्सिंग तो खैर हमेशा ही बड़ी क्लोज कनेक्शन में होती है पेशेंट्स के साथ, या चाहे आप रिहैब मेडिसिन में हो, बट बेसिकली यू हैव कनेक्शन विद योर पेशेंट्स. और जहाँ पे पेशेंट्स है वहाँ पे आपके टारगेट बहुत आराम से बन सकते हैं और आप इन टारगेट से कहीं गुना बेहतर चीज़ अचीव कर सकते हैं. इस प्लान लेट्स सी हाउ. सबसे पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ 3 अशरों की बहुत वैल्यू है. पहला अशरा सबको पता है, रमज़ान का. आखिरी अशरा दूसरा जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हुई, मुहर्रम का पहला अशरा. तीसरा अशरा कौन सा है? ज़िलहज का पहला अशरा. लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊँ, क्या हम में से किसी ने भी ज़िलहज स्टार्ट होने से पहले जिस तरह हम रमज़ान के आखिरी अशरे में वी वर सीरियस एंड वी वर कंसर्न्ड, हम में से कोई ऐसा हुआ? ऑनेस्टली कोई एक बता दे. ओह वाह माशाल्लाह. आई वाज़न्ट. जब तक मैंने ये नहीं किया था लास्ट क्लास से मैंने तैयार नहीं किया था, उसके बाद से ना कर रहा है बिकॉज आई नो इट्स प्रेशियस. किसी चीज़ की वैल्यू को जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो कि आपको पता उसकी वर्थ क्या है, तब आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं. सो हम देखें कि इनकी कोई कंपैरिजन है आपस में रमज़ान के साथ, क्योंकि सबसे कीमती हमें लगता है कि रमज़ान का आखिरी अशरा ऐसा ही है ना, तो उसमें रहमत कदर भी होती है. तो लेट्स सी, इसमें रमज़ान का बाबरकत महीना और इसमें भी हुर्मत और बरकत का महीना है. रमज़ान में रोज़े फर्ज हुए, इसमें हज फर्ज हुआ. रमज़ान में कुरान का नज़ूल हुआ और इसमें हज कुरान की तकमील हुई. कौन सी आयत है जो फरमा रही थी?
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ठीक है, उसके बाद रमजान के आखिरी अशरे में शब कद्र है और जिलहज के अशरे के बारे में कहा जाता है कि इसकी हर रात शब कद्र है। देखिए रमजान में आपको कंट्रोल नहीं है, बट यहाँ यू आर कंट्रोल विद एवरी नाइट इज शब कद्र। फिर वहाँ जहन्नम से खलासी है, यहाँ भी लोगों की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाते हैं, वहाँ पे रहमत है, यहाँ भी रहमत और मग़फ़िरत। और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे कुरान का जिक्र है और यहाँ भी कुरान पढ़ना ज़्यादा है। वहाँ पे हम सदका फिक्र देते हैं, यहाँ पे हम क्या देते हैं, पैरेलल कुर्बानी करते हैं। वहाँ पे हम एंड में हमारी पसंदीदा चीज़ आती है ईद उल फितर, यहाँ पे क्या आता है ईद उल जुहा। सो इज इट कंपैरेबल? So if you agree that it is comparable, so do you value it like you do it in Ramadan? No. रमजान में हम सारे चेंज होते हैं? Yes. मेरा ख्याल हर बंदा अपनी कोई 1% होगा, कोई 2 होगा, कोई 10 होगा, हो सकता है तो बहुत मुश्किल से 90% चेंज हो जाए और कोई इसको रिटेन भी कर सके, बट चेंज हर बंदा होता है अपनी रूटीन से। ऐसा ही है ना? So now we are going to value these days as well, and we have to change as clinicians, as professionals, because that is the way we are going to earn our akhirah. ठीक है? और इसके बाद में शहादत है, किसी ने पूछा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से कि आप बताएं कि जिलहज के 10 दिन अफजल हैं या रमज़ान का आखिरी अशरा। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जिलहज के दिन जो हैं वो अफजल हैं और रमज़ान के अशरे की आखिरी रातें जो हैं वो रातों में सबसे अफजल। सो वी हैव टू वैल्यू द डेज। और हमारा दिन कहाँ गुजर रहा है? हम कोने में बैठ के इबादत कर सकते हैं, जाने वहाँ से बैठ सकते हैं दिन में, तो फिर हम कहाँ से अर्न करेंगे? from our patients, from our जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे स्टूडेंट्स के तौर पे है, चाहे डोनेशंस के तौर पे। ठीक है, इसलिए हमने इनकी कदर करनी है। और हम इसकी कदर कर क्यों नहीं पाते? इससे पहले हमने कभी क्यों नहीं सोचा? हमने जैसे रमजान के लिए प्लान किया था, हमने इन दिनों के लिए प्लान नहीं किया। नहीं किया ना? किसी ने किया प्लान? एक ने किया था माशाल्लाह। क्यों? बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू। सिंस नाउ वी हैव नोन द वैल्यू, आर यू कमिटिंग टू प्लान इंशाल्लाह? गुड, ग्रेट। सो पहले हम इसकी फजीलत पढ़ते हैं, फिर हम अपने प्रैक्टिकल टारगेट्स पे जाएंगे। तो जब हम फजाइल की बात करते हैं तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी अज़मत की कसम खाते हैं। कौन सी सूरत है जिसमें खाते हैं कसम? सूरह फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ी वल वत्र। कसम है फज्र के वक्त की और 10 रातों की और जुफ्त की और ताक की। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा गया तो आपने कहा कि 10 रातों से मुराद पहला अशरा, ताक से मुराद यौम अरफा और जुफ्त से मुराद ईद उल अज़हा का दिन है। तो ये इतना कीमती अशरा है जिसकी कसम किस चीज़ की खाई जाती है? हम सबसे ज़्यादा कसम किसी की खाते हैं अगर हमने खानी हो तो? अल्लाह की। क्यों? बिकॉज कसम हमेशा कीमती चीज़ की, भारी चीज़ की खाई जाती है। ठीक है, उसके साथ ही हदीस में है कि ज़िलहज के जो इब्तिदाई 10 दिन है वो तमाम दिनों में सबसे अफजल है। अच्छा, फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें नेक अमल अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों के नेक अमल से ज़्यादा महबूब हो और पसंदीदा हो। ठीक है, अब सपोज मैं ओपीडी कर रही हूँ, आम दिनों में मैं ओपीडी करती हूँ, ओपीडी गर्मी भी बहुत है, रोज़ा भी रखा हुआ है, मरीज भी आ रहे हैं, एक पेशेंट 4 दफ़ा बात पूछ रहा है, हमें क्या रिस्ट्रेन करना है खुद को? नहीं, सब्र सब्र सब्र। क्यों? बिकॉज ये बड़ा कीमती दिन है, ये रमज़ान से कीमती है, इसका दिन रमज़ान से कीमती है। सो जो मेरे एक्शंस होंगे मेरे कलीग्स के साथ, मेरे पेशेंट्स के साथ, वो मुझे रिस्ट्रेन करेंगे। ठीक है, मेरे सहाबा किराम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ये अल्लाह के रास्ते में जहाद से भी बढ़कर है? आप सच में फरमाया हाँ, जहाद से भी बढ़कर है। अलबत्ता वो शख्स जो जान माल के साथ अल्लाह की राह में निकला, फिर उनमें से किसी भी चीज़ के साथ वापस नहीं हुआ, यानी शहीद हो गया, तो उसकी जो शहादत का ये अमल है ये इन दोनों से अफजल है। जो शहीद हो गया उसका अमल अफजल है, बट अदरवाइज जो ज़िलहज के दिन के अमाल हैं वो इवन जिहाद से अफजल है। ताज़ा ताज़ा बयान कौन सी हमारी ऑपरेशन गुजरा दुनिया में? सबका दिन चाह रहा था ना जहाज में जाने को, एक तलब की, एक बेस की जिहाद की थी ना, लेकिन हमें से कितने लोग मेरे जहाद एक्टिव जहाद कर सकते हैं? तो मौका दिया ना अल्लाह पाक ने कि बाय सिटिंग इन योर ओन कम्युनिटी, सिटिंग एट योर ओन वर्क प्लेस, आप ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ अपना काम करें, अपने पेशेंट्स, अपने फैकल्टी, अपनी एकेडमिक्स को देखें, तो आपको किसका अजर मिलेगा? आपको जिहाद से बढ़कर अजर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपना फर्ज इखलास के साथ करना भी उससे भी अजर है। और मेरा और आपका फर्ज क्या है? जो क्लिनिशियंस है उनका फर्ज क्या है? अपने पेशेंट्स को देखना। जो फैकल्टी है उसका फर्ज क्या है? बेहतरीन तरीके से पढ़ाना। जो स्टूडेंट्स हैं उनका फर्ज क्या है? बेहतरीन तरीके से पढ़ना।
जो जाके क्लिनिक्स में ओरिएंट होते हैं वहाँ पे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पेशेंट्स को फैसिलिटेट करना। अच्छा, अब इन दिनों की फजीलत इतनी है कि सहाबा भी हैरान है और वो पूछते हैं सुनो जहाज से भी जाता, तो मैं और आप हमें कितना हैरान होना चाहिए इनकी फजीलत का, हमें कितना केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं फजीलत की तो सवाल आता है कि आखिर क्यों, वाई? कोई जवाब देगा क्यों? सवाल आना चाहिए ना भाई, बगैर सवाल के तो हम दुकान नहीं इसका मतलब है हम सो गए। वाई? क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल में? बिकॉज इसमें कॉम्बिनेशन है किस किस चीज का? तमाम जितने बेसिक अरकान इस्लाम है, नमाज का, रोजे का, ज़कात का, हज का और जिहाद का। जिहाद किसे है? जब आप हज या जिहाद कहते हैं मुशक्कत को, तो बेसिकली आपकी जिस्मानी और माली मुशक्कत उसमें शामिल होती है। तो ये वाहिद सिचुएशन है जिसमें पांचों चीजें आती है। रमजान में पांचों है? नो, पांचों नहीं है। ये वाहिद अशरा है जिसमें पांचों अरकान इकट्ठे आते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वैल्यूएबल। अच्छा जी, उसके बाद अब रिग्रेट। इतना कुछ जानने के बाद किसी को रिग्रेट हुआ कि हाय अफसोस, मुझे तो पता ही नहीं था। How many know it for the first time that it's so precious? मुझे भी पिछले साल ही पता चला था, मैंने किसी के लिए लेक्चर तैयार किया था लेडीज क्लब के लिए, एंड देन आई केम टू नो। और मैं आपको आगे अल्लाह पाक से कहती है कि आपका वादा है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले वो क्या होती है, वो आपके अपने ऊपर असर करती है। सो लेट्स होप कि एक्चुअली वी ऑल अर्न फ्रॉम इट और हम अपने मैसेंजर्स बने, ये मैसेज और को दें। तो इस रिग्रेट को हमें करना क्या है? ये दिन तो गुजर जाएंगे, गुजर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर वी डोंट नो हाउ मेनी आर गोइंग टू बी हियर, ऐसा ही है। तो क्या करें? व्हाट वी शुड डू? वैल्यू करें और रोजे में जो डिफरेंस इतनी छोटी छोटी चीजों से भी डिफरेंस करेगा। कैसे कि एक हम जन्नत में होंगे इंशाल्लाह, वी ऑलरेडी देयर, लेट्स गो। तो हम वहाँ होंगे तो एक बहुत झोंका आएगा, बहुत ही मौत का बड़ा परफ्यूम किस्म का। तो जन्नती पूछेगा फरिश्तों से क्या हुआ? वो कहेगा आपने जो ऊपर वाली जन्नत थी ना, उसके बंदे ने करवट बदली। अच्छा, तो मेरी ऊपर वाली जो जन्नत थी इसके बंदे ने मुझसे क्या अमल बड़ा किया था कि वो करवट भी बदलता है, उसकी परफ्यूम या महक जो है वो नीचे तक आती है। पूछेगा उससे आपने एक दफा क्या ज्यादा पड़ा था? सुभान अल्लाह। एक सुभान अल्लाह वहाँ जाके इतना डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो उलमा कहते हैं कि उससे वो लोग जो जो उधर होंगे वो क्या करेंगे, जो रिग्रेट, वो अपनी उंगलियां काटेंगे कि ओ अफसोस, काश हम अपने टाइम को कीमती बनाते। आई डोंट वांट टू से कि आप कुछ एंजॉय ना करें, लेकिन आप अपने टाइम को कीमती बनाएं। अगर आप जा रहे हैं क्लिनिकल रोटेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ आप आपस की गप की बजाय किसी पेशेंट के साथ भी बात कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ हर चीज़ की ना एक एडिक्शन है, लेने की एक एडिक्शन है और देने की एक एडिक्शन है। अब आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन देने की बहुत बड़ी एडिक्शन है। जिसमें आपको मतलब ये चीज़ें खरीदती है ना, आप एक डोपामिन रिलीज होता है। एक्चुअली कहानी तो सारी डोपामिन रिलीज की है ना, यू फील एलिवेटेड बाय डोपामिन रिलीज। आप अपने लिए कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर आप आईने के सामने खड़े होते हैं, यूँ देखते हैं, यूँ देखते हैं, पहनते हैं, सारे यही करते हैं ना। फिर कोई तारीफ करता है तो लगता है पैसे हलाल हो गए, है ना। बट व्हेन यू स्टार्ट गिविंग अदर्स, बिलीव मी, वो जो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड उसके चेहरे पे होता है, वो जो एक्सप्रेशन ऑफ डिलाइट उसकी आंखों में होता है। आप किसी बच्चे के साथ पेशेंट्स आपके होते हैं, आपको बच्चा होता है परेशान है, आप उसके साथ बैठे उसी केज में बैठ जाए, 4 से 5 मिनट में उस बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। और ये होता है ऑन ग्राउंड, हम डे इन डे आउट इसको देखते हैं। सो काश कि हमें देने का एडिक्शन हो जाए इंशाल्लाह और अपने पेशेंट्स को हम बेलॉस तरीके से दे सकें। सो कमिंग नेक्स्ट, अब हम क्या करें? रिग्रेट करें? 2 दिन गुजर गए, प्लान नहीं किया, अल्लाह रिग्रेट करना शुरू कर दें, सोना शुरू कर दें? नो, वी स्टिल हैव ब्लेस अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो रहमत है ना, वो बिल्कुल समंदर की तरह है। उसकी जो रहमत की लहरें हैं ना, वो हर लम्हे उठने को तैयार है। हम सिर्फ वहाँ जाके पीने के लिए तैयार हो जाए। तो हमने करना क्या है? और इकबाल भाई खूबसूरत बात करते हैं कि हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। We lost what basic norms were taught to us. आज हम प्रोफेशनलिज्म पढ़ रहे हैं, बिलीव यू मी, ये वही प्रोफेशनलिज्म है जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे घर में। ऐसा ही है ना, पेशेंट को पहले सलाम करे कर्टेसी के साथ, फिर उसको एम्पैथी के साथ डील करे। फिर ये सारी चीज़ें हमें पेरेंट्स घर से नहीं बता रहे थे।
जवान थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब जोश में फिरौन के खिलाफ खड़े हुए तो वो क्या थे? वो जवान थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 ईयर्स में जवान थे। नबूवत 40 साल में मिली सबको, जब जवानी और हिकमत का एक अल्टीमेट कॉम्बो था। सो हमने भी कोशिश की कि हम अपने जवानों को बेदार करें ताकि हमारे औकात बनकर उड़ सकें इंशाअल्लाह ताला। ओके, how I felt about it? Actually, I read an article by an Iranian author whose name was Dr. Ali Shariati, and he had written about Hajj. लेकिन उस हज में उसका एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था which he had asked, who is your Ismail? Now coming to the targets that we are going to keep for us. Who is your Ismail? Have you ever thought about it this way? We slaughter animals, कोई गाय करता है, कोई बकरी करता है, कोई सबके घर में कुर्बानी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है ना? But when you are slaughtering an animal, have you ever thought कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने slaughter किया था, वो सिर्फ animal था? नहीं, it was his ultimate love. It was the love of a son who was given at the age of more than 90 years. फिर जब वो जवान हुआ, क्या कुछ इख्तिलाफ है, 12-13 साल जितने भी, 12 to 13 years का भागने लग गया, उसमें हुक्म क्या हुआ कि उसको slaughter कर दो। Can we do it? No. So actually हमें क्या उससे लेसन लेना है कि we have to slaughter whatever is very close to me. We have to slaughter whatever is very dear to me. I have to let it go. आपको सबसे dear क्या चीज़ है? आपको कहा जाए उसको sacrifice करें। पेशेंट की कॉल आ गई, परसों तरसों हुआ, आपको मम्मा का फोन आया, बेटा आ जाओ, लंच पे आ जाओ, we all are having a get together, just come, try to come a bit early. अच्छा 1:45 बजे पेशेंट आ गया and you have to see him or her. वार्ड में कोई मसला हुआ, ये भी नहीं कि दूसरा नया पेशेंट पुराना आपसे बात करनी है, then he or she takes your 30-40 minutes. अब यहाँ पे किस चीज़ को आप slaughter कर रहे हैं? The love of your family. किस चीज़ को आप slaughter कर रहे हैं? The love of food, the desire to go. And this happens day in day out. आपके पास प्रोफेशनल लाइफ में कितनी एग्जाम्पल्स हैं? ऐसा ही है? So next time हम उसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म में, हम उसको कहते हैं ऑल्ट्रुइज्म, सेल्फ सैक्रिफाइस। ऐसा ही है? प्रोफेशनलिज्म की बुक्स में उसको नाम दिया गया ऑल्ट्रुइज्म का। But I believe that is my Ismail, which I am slaughtering every time. That altruism, selflessness is my Ismail. ठीक है? So हमने क्या प्लान करना है कि I have the same question for you today. Now you will think, you will go back and you will think कि आपके रास्ते में जैसे मिसाल के तौर पे आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है academics. Your parents have sent you to study and suppose जो बिल्कुल बेसिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनका तो क्लिनिकल एक्सपोजर इतना नहीं होगा ना, उनका तो स्किल लैब नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है academics, ठीक है? अब आप सोचें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन academics के रास्ते में आ रही है जो स्टॉपिंग यू? Anything? TikTok, WhatsApp, है ना? ये सारी चीजें they are stopping you. So when they are stopping you, at that point, that is your smile, which you have to slaughter. ठीक है? So let's see हम क्या अपने targets बनाते हैं. So कितनी दफा जब मैं बच्चों से पूछती हूँ, कहते हैं कि the last of the world, ठीक है? लालच, to have more and more, the desire to just, जिसे कहते हैं ना, sleep in the world. I don't want to tell you कि आप कुछ मत करें। मेरा दिमाग उन लोगों में होता है कि शायद बहुत कम वीकेंड्स पे घर पाए जाते हैं, और मेरी अम्मी ऐसे डांट के कहते हैं किसी वीकेंड पे बंदा घर में बैठ जाता है, because whenever she comes to, we are not at home. तो मैं कहती हूँ आप बता कर आए, सुनना तो बता कर आना है, ठीक है? So आप हाइकिंग पे गए, आप जरूर जाएं, लेकिन क्या करें, अपनी प्रायोरिटी को चेंज करें। आप हाइकिंग पे गए, जरूर जाएं, खूब इंजॉय करें, लेकिन जब वहाँ पे नमाज का वक्त आ गया तो अपनी नमाज वापस करिए। Is it difficult? Is it difficult? No. It's not at all difficult. What we have to do is to change our mindset. इसी तरह आप हॉस्पिटल में हैं, आपकी ब्रेक सामने आ रही है और पेशेंट बहुत ज़्यादा है और आपको हेड भी हल्का हल्का होने लगा है, you want to have a break, लेकिन आपके पेशेंट्स हैं, अब आप किसको सेक्रीफाइस, इस वक्त आपका स्माइल कौन है जिसको आपने स्टार्ट करना है? Your desire to have a caffeine kick, especially if caffeine addicted होते हैं, they can correlate with you. But you have to suppress that. कि नहीं यार, मैं पेशेंट्स को पहले कॉल कर दूँ, उनको आराम से मेडिसिन मिल जाए, then I can have. या फिर अगर मैंने ब्रेक लेनी थी, तो I should just take a walking tea of 10 to 15 minutes and I should continue. Is it difficult?
कि मैं इतना काम करके इतना फ्रेश हूँ कैसे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू प्रायोरिटाइज। सेकंड, व्हाट वाज आइडियल, व्हाट डू यू थिंक इज आइडियल। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स है जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, व्हाट इज आइडियल, क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक इज एन आइडियल। एनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नॉन क्लिनिकल ईयर्स जी, आप ही उठाना, वो कह रही आप हैं, आप कह रही मैं नहीं हूँ। हाँ, अच्छा है, जी बताइए। To give your best, how you can give your best? So इस वक्त आपका स्माइल क्या है? What is stopping you from the best? Sorry? Instagram. So do you think कि सबका स्माइल एक होगा? No, it will be different. ठीक है? So we missed it. अब तक हम नहीं कर सके, लेकिन now we are going to use this day. ये जो 10 days है ना, क्योंकि हम सारे बात करें ना, ईद का रोस्टर बनेगा, कुर्बानी का जिक्र होगा, कुर्बानी का जानवर दिया जाएगा। सो इन 10 डेज में हमने खुद को ट्रेन करना है, और हमारे क्लिनिक्स में, हमारे कॉलेज में, हमारे क्लासरूम में जितनी स्माइल्स हैं हमने उनको स्लॉट करना है। व्हाटएवर इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग द राइट थिंग, ठीक है। और उसमें इसको हमने इफेक्टिव कैसे करना है वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इफेक्टिव करने के लिए आपको किसी चीज़ की वैल्यू पता चल गई, फिर आपने उसके प्रैक्टिकल टारगेट्स डिफाइन किए। ये टारगेट्स क्या करेंगे, आपके चेंज इन बिहेवियर करेंगे, एंड दिस बिहेवियर विल एक्चुअली हेल्प यू स्लॉटर योर स्माइल, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें फास्टिंग है। अब जब हम फास्ट करते हैं तो क्या फास्टिंग सिर्फ खाना पीना मना करना है? नो, आप ओपीडी में बैठे हैं, फास्टिंग वाले दिन आप कुछ नहीं कह सकते। अक्सर तो ब्लंडर मारते हैं बड़ी वगैरह, तो आज मेरा रोजा है, बात खराब करो, you know, you have to resist. So this is the real fasting, and if we do it for 10 days, inshallah this is going to tame us, ठीक है। उसके बाद इबादत, then positive emotions, अमाल and कुर्बानी, we'll see how. So first we talk about fasting. तो अल्लाह हदीस का महफूम है कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए अशरा ज़िल्हज से बेहतर कोई ज़माना नहीं, और एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर, और एक रात की इबादत शब कदर की इबादत के बराबर है। तो सबसे पहले हमने फास्टिंग करनी है, बट नॉट द सॉन्ग विच इज जस्ट फॉर द फूड, द सॉन्ग विच इज द सॉन्ग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, एंड द सॉन्ग विच इज द सॉन्ग ऑफ माई हार्ट एंड माई सोल एंड माई आईज एंड माई ईयर्स। सो कोई गलत चीज़ नहीं सुननी, कोई गलत चीज़ नहीं करनी, और टेन करना है, और क्लिनिक्स में या क्लासेस में आपने खुद को टेन करना है। फिर अरबा के दिन का रोज़ा जब वो आप रखते हैं तो 2 साल, गुज़िश्ता और आइंदा दोनों सालों के गुना। सो वी ट्राई कि हम 10 रखें, 10 नहीं हो सकते तो कम से कम 9 का जरूर करें, ओके। देन रियल सॉन्ग को हमने प्रैक्टिस करना है। रियल सॉन्ग कौन सा है, जो वर्क प्लेस पे हमें किसी भी गलत चीज़ से बचाएगा। हमने रमज़ान में रोज़ रिफ्लेक्ट करते थे कि आज का हमारा कितने रोज़े बचे, कितने रोज़े खराब हुए, कितने लोग डेली रिफ्लेक्ट करते थे कि आज मेरा रोज़ा बचा कि नहीं बचा। बचा नहीं बचा से मुराद ये है कि कोई गड़बड़ हो गई तो गया जी, मैंने अपनी तरफ से, वैसे तो अल्लाह पाक बहुत गनीम है, वेरी गुड, वेल डन। तो कितने बचाए थे बेटे आपने, मैं तो एक ही नहीं बचा सकी थी एंड ऑफ द मंथ, ऐसे ही लग रहा था। सो वी होप फॉर हिज फॉरगिवनेस, लेकिन लगता यही है कि यू नीड टू एक्सर्ट मोर। अच्छा जी, अब हम जब इबादत की बात करते हैं, हम कुरान की बात करेंगे, हम जिक्र की बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें दुआ है। एज अ क्लिनिशियन आपने अपनी दुआ में, जो नर्सेज है हमारी, कितनी दफ़ा आप अपनी दुआओं में जो आपके वार्ड में कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है उसको भी इन्वॉल्व करती है? गुड। नहीं वो नहीं, आप घर में, आप अपने पर्सनल टाइम में, रिलैक्स टाइम में, आपने अपने घर में नमाज पढ़ी, असर होने विशा पढ़ी, एंड देन यू थिंक अबाउट योर पेशेंट एंड यू प्रे फॉर देम। हाउ मेनी टाइम्स इट हैपेंस? कभी कभी हो जाता है, बट shouldn't it be regular part of our personality कि जो लोग हम पे डिपेंडेंट हैं we should remember them। so जब हम दुआ की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हमने इन दिनों में तो हमने तस्बीहात करनी है, और तस्बीहात में क्या है, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, राइट। और एक चीज़ जो मुझे पता चली थी वो क्या थी, ये जो 4 कलमात हैं इसमें वो सरदार है। वो 4 कलमात कौन से, कौन बताएगा?
बनती होती है. कैन यू डू इट? डू इट? यस और नो? हाउ? हाउ? मैं आपको बताऊं बेस्ट टाइम कौन सा है? द बेस्ट टाइम इज व्हेन यू आर मूविंग. आइदर यू आर मूविंग इन कार, जैसे मैं कॉलेज से यहाँ आती हूँ, हॉस्पिटल से 3 से 4 मिनट आपको लग जाते हैं वापस जाने में लगेगा. इफ यू आर अलोन और आपकी पॉजिटिव बात करें तो वो भी अच्छी है, लेकिन व्हेनेवर यू आर मूविंग यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस दिस. ठीक है? और वो 4-5 हैं जो सरदार हैं. यस, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह. अब मुझे पता है मुश्किल है और अजर कितना है मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक ज्यादा पढ़ते हैं तो आपकी करवट से जन्नत में महक होती है. ठीक है? सो इसको रिसाइट करने का एडवांटेज क्या होता है? जब हर वक्त आप एक्चुअली ये चीजें पढ़ते हैं तो यू आर कनेक्टेड टू अल्लाह रब्बुल इज्जत और आप में एक ह्यूमिलिटी आती है. और जब आप अल्लाह पाक से कनेक्टेड होते हैं तो फिर आप उनके बंदों से जरूर कनेक्टेड होते हैं. हैव यू फील दैट? व्हेन यू आर इमोशनली चार्ज और आप कनेक्टेड होते हैं अल्लाह पाक से, उस दिन आप बंदों से भी कनेक्टेड होते हैं, फिर आप उनको भी मार्जिन देते हैं. और जिस दिन आपकी बजट छूटी होती है उस दिन आप बंदों से भी उतना नहीं कनेक्ट हो पाते, उस दिन आप क्लिनिक में भी उतना सबर नहीं शो कर पाते जितना कि एक्चुअली आपको शो करना चाहिए. ऐसा ही है. सो एक्चुअली दे टेक यू इन द लॉन्ग रन. ठीक है? सबसे पहली चीज ये, और जो चीज मुझे पता चली थी कि एक्चुअली पहले अशरे में बहुत रेगुलरली पढ़ना चाहिए. एंड यू गाइस आर लकी फॉर नोइंग इट. आई जस्ट न्यू इट 2 years बैक. उससे पहले मुझे नहीं पता. और उससे भी ज्यादा बड़ी चीज जो कि तकबीरात तशरीक है कि नबी से लेकर आपकी 13वीं की असर तक आपने हर नमाज के बाद तकबीरात पढ़नी है, जो कि हम सब पर वाजिब है. मैंने 45 साल नहीं पढ़ी थी बिकॉज आई डिडंट नो. यू गाइस आर लकी. हमारे पास एक बास्केट है, हम उसको रोटेट कर रहे हैं. बास्केट में तकबीरात के ऐसे सर्कल्स बना हुआ है. आपने 9 की सुबह अपनी जानमाज में उसको पेस्ट कर देना है और आप उसको देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हर नमाज के बाद याद आएगा. हमारी बास्केट रोटेट करा दें. ठीक है? सो बास्केट्स आपके पास आ जाएंगी, उसमें से आपने एक पेपर उठाना है और अपने पास रखना है और जाके अपनी जानमाज में या मम्मा की जानमाज में पेस्ट कर देना, सो दैट व्हेन यू प्रे ऑन द मैट ऑटोमेटिकली आपको नजर आए. ये वो चीज़ थी जो मुझे नहीं पता थी. ठीक है? उसके अल्फाज ये हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द. ठीक है? सो याद तो आप कर लेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मुझे याद आए कि मैंने पढ़ना है. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज आई पेस्ट इट ऑन माय जानमाज और मुझे याद रहता है, अदरवाइज आप भूल जाते हैं. अच्छा, अब अहयाए सुन्नत में एक शहीद का सवाब है. ये सुन्नत हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई. आपने किसी को सुना था इससे पहले तकबीरात तशरीक के बारे में? मुझे तो नहीं पता था. अच्छा माशाल्लाह, ये बच्चे अच्छे हैं, इनको पता है. आई डोंट नो. अब अगर हम इसको रिवाइव करते हैं सुन्नत को तो हमें एक शहीद का सवाब है. फिर वही बात, रिसेंटली हमारे पास ऑपरेशन गुजरा है, हमने शहदा देखे. कितने लोगों के दिल में आया कि काश मैं भी इन शहदा में शामिल होता? Anybody had a desire? Okay, so your desire is here to be fulfilled. If you do the ahya of this sunnah, you will be given the ajr of a shaheed. Subhanallah. मजे की बात है ना? I never knew it, so I really enjoyed it. ठीक है? अच्छा जी, अब अगली चीज पॉजिटिव इमोशंस. हमारे 2 पॉजिटिव इमोशंस हैं जो हमने स्पेसिफिकली यूज करने हैं. एक है रिपेंटेंस, जिसको कहते हैं तौबा, और दूसरा है ग्रैटिट्यूड. मुझे ये लगता है कि शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की, फेसबुक और सोशल मीडिया की वजह से हम हर वक्त देखते हैं. वो समर वेकेशन में स्विट्जरलैंड चला गया, वो समर वेकेशन में दुबई चला गया, वो समर वेकेशन में कहाँ चला गया, टर्की चला गया. तो सबसे ज़्यादा वो तो आज यहाँ खाना खा रहा है, उसने तो आज ये वाली गाड़ी खरीदी है ना? इस सारे का नतीजा क्या होता है? व्हाट वी हैव स्टार्टेड लैकिंग द मोस्ट? gratitude. We have started forgetting what we have. So clinics में भी जब हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो बीमार होता है तो सबसे ज़्यादा अगर आपकी अपनी ज़ात पे ग्रैटिट्यूड है तो आप औरों को ग्रैटिट्यूड देंगे. और ग्रैटिट्यूड वो वाली चीज़ है जो किसी भी परेशानी में आपको कंफर्टेबल रखेगी. ऐसा ही हैव यू सीन पेशेंट्स, हमारी स्पेशली नर्सिंग स्टाफ से, हैव यू सीन पेशेंट्स कि वो बहुत बीमार होंगे एंड स्टिल आप उनके पास जाए दे लीजिए देयर विद अ स्माइलिंग फेस. अभी हमारे आज भी डॉक्टर साहब की डेथ हुई, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए. ही वाज वेरी सिक बट ही वाज ऑलवेज स्माइलिंग. हमारे कलीग थे. एंड हैव यू सीन पीपल जिनको हल्का सा जिसे कहते हैं कांटा चुभ गया आसमान सर पे उठा लेते हैं. हैव यू सीन दैट काइंड ऑफ पीपल? So if you teach gratitude to your patients, actually you are going to make them comfortable. Number 1, they are going to go better with your therapy. And number 3,
ग्रैटिट्यूड आपका बढ़ा सकते हैं जब आपको खुद को आता होगा. So for that you have to practice gratitude. ठीक है? Positive emotions में तौबा, gratitude और सबसे पहले connection with humans. हम हजाज की बात करते थे ना कि वो गए and we are missing them. So just like that we have to connect with all our people around us. इसमें हमारे colleagues भी आते हैं, हमारी faculty भी आती है, हमारे patients भी आते हैं. We have to connect with them. और उनसे connect होके हमने actually earn करना है इस कष्टे के जो भी नेकियां हैं. Is it doable? Difficult है? So, अच्छा पॉजिटिव इमोशन जब हम बात करते हैं तो हर चीज़ तलब पे डिपेंड करती है. जितना आप किसी चीज़ के लिए आजकल अक्सर ये होता है कि हमारे बच्चों को बहुत सी चीज़ें, हम सॉरी मेजॉरिटी बच्चों को बहुत सी चीज़ें बिन मांगे मिल जाती हैं. ऐसा ही है ना? फोन की ज़रूरत, अभी हमने इरादा जाहिर ही किया कि हमें फ़ोन चाहिए, मामा पापा फ़ौरन फ़ोन दे देते हैं. हमें इरादा ही जाहिर किया कि हमें गाड़ी चाहिए, मामा पापा फ़ौरन गाड़ी अलग दे देते हैं. ऐसा ही कितने बच्चे ड्राइव करके खुद ही आते हैं. तो ये जो तलब है ना, ये एक आपके एक तलब और एक डिज़ायर डेवलप करती है. एंड देन दिस डिज़ायर चेंजेस योर एक्शन. अगर आपको सारी चीज़ें इनसे मिलने लग जाए तो एट टाइम्स यू डोंट हैव अ ग्रैटिट्यूड. तो डेवलप दिस इन यू. और इसकी एग्जांपल्स हमें कहाँ से मिलती है कि हम जब बात करते हैं तो बिलाल हफ्ती रेस्टोरेंट की कहाँ से आए थे मेडिकेन सिस्टम के पास? एथोपिया से. सलमान फारसी कहाँ से आए थे? भारत से. तो ये मतलब रूमी का रेस्टोरेंट कहाँ से आए थे? रोम से. Why they all came? Because they had a desire to learn. वो लोग जो हॉस्टाइल्स होते हैं, क्लासेस होती है, तो वो आपसे कहते हैं मैडम हम तो हॉस्टलाइज हैं, इतनी मिस्कीनियत होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती. ओके, पार्शली यस, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो ये क्यों नहीं सोचते कि वी आर ब्लेस्ड? अल्लाह पाक ने हमें सिलेक्ट किया कि हम एफर्ट गुजारे, हम घर से निकल के पढ़े. ऐसा भी तो हो सकता है ना? Even this thought itself is going to change you as a person, right? अच्छा, हमने आज वो तलब और वो तड़प खो दी. और जैसे कोई बात करते हैं ना कि उसकी वजह क्या है इस तलब की खोने की, और ये तड़प है क्या आपके ख्याल में? व्हाट इज दिस डिजायर, अल्टीमेट डिजायर? ये कैसे डेवलप होगी कि हम चाहें कि हम एक्सेल करें एकेडमिक्स में भी, हम चाहें कि हम अपने पेशेंट्स के साथ भी, वो की कहाँ से आएगी? हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप इट? जी, एक तो जब बास्केट चलती है ना तो फोकस हमारा चेंज हो जाता है. माय तलब एज अ डॉक्टर, क्या तलब है आपकी? मुझे 2-3 तलब बताएं चले. व्हाट डू यू थिंक यू वांट फॉर योरसेल्फ? प्रैक्टिकली तो सारे डॉक्टर ना स्पेशलिटी से छोड़ दीजिए जी. नंबर 1, यू वांट योरसेल्फ टू बी सॉरी द बेस्ट. ओके, वाओ, द बेस्ट कैसा? ऑब्जेक्टिवली बताओ ना, क्या चीज बेस्ट? सॉरी, ओके, व्हाटएवर यू फील. अगर ये दरवाजा बंद कर दे, दोस्त हु वांट टू गो कैन गो फ्रॉम द बैक, तो लाइट बार-बार आ रही है. तो बेसिकली व्हाटएवर यू वांट फॉर योरसेल्फ, यू वांट टू गिव इट टू अदर्स. ग्रेट. अब इस तरफ को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए? मर्द खुदा का अमल. ठीक है? ये किस वैसे उससे है, इकबाल की किस नज़म से है तो बताएगा? ये तो टॉपी वाला जवाब है बच्चे. आज मेरे पास में टॉपी है नहीं, वैसे होती है अक्सर. मस्जिद अक्सर आ रही है मस्जिद खुदा. ठीक है? मर्द खुदा का अमल, इश्क से साहब करो, इश्क है असले नया, मौत है इस तरह ना. इफ यू रियली वांट टू एक्सेल तो आपको अपने प्रोफेशन को, जैसे कहते हैं, प्रोफेशन से इश्क करना पड़ेगा, प्रोफेशन से डीपली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, प्रोफेशन को पैशन के साथ लेके जाना पड़ेगा. ना इज इट पॉसिबल कि आप अपने प्रोफेशन को पैशन के साथ लेके चलें? एंड मैं आपको बात बताऊं, जब आप अपने प्रोफेशन को पैशन के साथ लेके बढ़ते हैं, when your passion and your profession are the same, in that you don't have to work, you enjoy every day of your life, है ना? दूसरा बात कहते हैं कि तेरे बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर कोई नहीं. तो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. और ये अंडरस्टैंडिंग हम कैसे डेवलप करते हैं? इस किस्म की गैदरिंग से बैठ के, बुक्स पढ़ के, लिटरेचर पढ़ के, या ऐसे लोगों के साथ बैठ के. इन एडिशन टू आवर ओन, एक हमारा सब्जेक्ट है मेडिसिन. ठीक है? इन एडिशन टू द मेडिसिन वी हैव टू नो द सॉफ्ट स्किल्स, द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, द इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्शन. राइट? अच्छा, फाइनली जब जाते हैं तो हज क्या है? हज क्या कहता है आपसे?
हज में हम क्या करते हैं, 2 चादरें पहनते हैं, एक शू होता है वो भी खुला, और एक हमारा छोटा सा बैग होता है जो हमने कमर में बांधा होता है, फुल स्टॉप। दिस इज व्हाट वी डू। और 5 डेज हम सिर्फ इतने ही सामान के साथ गुजारते हैं, हज के जो दिन होते हैं 3 दिन, ऐसा ही है। इससे क्या साबित हुआ कि हमने दुनिया की, और हम कोई परफ्यूम सोप नहीं यूज करते, कोई बाल नहीं करते, तो इससे क्या साबित हुआ कि एक्चुअली वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग फॉर अल्लाह रब्बुल इज्जत। ऐसा ही है। अब अगर अल्लाह पाक क्या कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, अल्लाह उनका दोस्त हो जाता है और उसको मजीद आगे चलाता है। तो हम अपने पेशे को इस अशरे में हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोफेशन को भी रब की ऐसी रजा में ढालेंगे कि उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम सब कुछ छोड़ सकें। And this applies first of all to me and then to others. हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट फॉर दीज 10 days हम अपनी एकेडमिक्स को, अपने पेशेंट्स को, अपनी फैकल्टी को, अपने पीयर्स को डिफरेंट तरीके से लेके चलें, ठीक है। और उसके बाद सदका एंड गुड डीड्स। सदके की जब हम बात करते हैं, तो गुड डीड्स में जब हम बात करते हैं, तो एक तो हमारी इबादत है, ठीक है, जिसमें नमाज, कुरान, ज़िक्र और दुआएं हैं, और दूसरा हमारा सदका है। सदके में आपको बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम अपने काम को देखें, तो अगर हम अपने वालिदैन से उससे सलूक करें घर पे, हमने क्या करते हैं 10 दिनों में वी विल ट्राई कि हम मम्मा की एक्स्ट्रा हेल्प कर सकें, कोई एक काम हम मम्मा का एक्स्ट्रा कर सकें, पॉसिबल है। और कुछ नहीं तो जो लोग, कितने लोग सुबह आते हैं अपना बेड मेकअप करके आते हैं, हाउ मेनी, ओके। हम अगर सुबह अपना, जो लोग नहीं करके आते वो अपना बेड भी मेकअप करके आने लग जाए, तो विल इट बी हेल्प, यस, ठीक है। इसी तरह नेकी का हुक्म, बुराई से रोकना, जो चीज़ आपको पता है वो औरों को बताएं, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने मरीजों की होल हार्टेडली उनको लुक आफ्टर करना, अपनी एकेडमिक्स में होल हार्टेडली इन्वॉल्व होना। ये बहुत बड़ा सच्चा है, हम इसको अंडरलाइन करते हैं। हम समझते हैं कि सच्चा सिर्फ वही होता है जो बाहर जाके किया जाता है, नो। कहते हैं कि इवन किसी को मुस्कुरा के देखा, ये भी सच्चा है। सो व्हाई नॉट टू actually get all these sadaqas in my workplace and then use them, right? So मेरा आपका सबसे आसान सदका हमें कहाँ मिलेगा? इतना सदका तो हमें घर में भी नहीं मिल सकता जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस प्रोफेशन में दे रखा है, ऐसा ही है? Okay, good. So हमने, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग जो हुए वेरी हार्ड डिजायर टू गो टू हज, ये लिस्ट भी मुझे तब पता चली जब मैं लेक्चर बनानी थी कि देयर आर फ्यू थिंग्स जिनका जो अजर है वो हज के बराबर है। So if you really want and you can't go, you can do these. कि अगर आप घर पे वज़ू करके नमाज मस्जिद में अदा करें, आप फजर पढ़ें और इशराक तक नमाज अदा करें, फिर मस्जिद में इल्म सीखने और सिखाने जाएं। हम यहाँ सीखने सिखाने आए हैं, ठीक है। फिर फर्ज नमाज के बाद तस्बीहात करें, वालिदैन की खिदमत और खुशी, कितना आसान काम है ना। Everyone of us can do it and everyone of us will try to do it, yes, इंशाल्लाह। सो रमज़ान में उम्रा करने का, और या फिर कोई जो मुजाहिद है, जो रोज़ादार है या जो हाजी है, उसको लुक आफ्टर करें। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता थी। दिस इज द लिस्ट व्हिच इज इक्वल टू हज आज। एनीहाउ, अरफा के दिन हमने क्या करना है, हमने उस दिन जो सबसे बेहतर जो दुआ है वो अरफा के दिन है, और उस दिन हमने दुआएं मांगी है। बेहतरीन दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई है, उन्होंने कहा है कि आप कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ठीक है। और जब हम एक अल्लाह को मानते हैं तो फिर हम अल्लाह के बंदों को भी मानते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैडम मैं आई लाइक यू बट आई एम सॉरी आई डोंट लाइक ऑन्कोलॉजी, ये हो सकता है? एक्चुअली डिफिकल्ट है ना। आई लाइक यू बट आई डोंट लाइक योर सन, आई लाइक यू बट आई डोंट लाइक योर फैमिली। तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से प्यार करेंगे तो उनके बंदों से प्यार करना मस्ट होगा, ठीक है। सो यौम अरफा की दुआ जो है वो अक्सर और बेशतर काबिल कबूल होती है। उस दिन आपने थोड़ा अलग से टाइम निकाल कर बैठना है और दुआ करनी है सबके लिए, स्पेशली अपने मुल्क के लिए, उम्मत के लिए, अपनी ज़ात से ऊपर होकर दुआएं करनी है, ठीक है। फाइनली हम बात करते हैं कुर्बानी की। तो कुर्बानी जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसकी इम्पोर्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। सो दैट यू नो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल खून बहाना है, और क़यामत के दिन कुर्बानी के जानवर अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएंगे, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले कबूलियत का दर्जा हासिल कर लेता है। इसीलिए खुश दिली के साथ कुर्बानी करो। एम्फेसिस किस पे? खुश दिली पे। और अगली चीज़ जो मुझे भी नहीं पता थी, ना कि जब कुर्बानी की जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी फातिमा से फरमाया
मग़फ़िरत हो जाती है। हम सारे कुर्बानी करते हैं, कितने लोग अब गलत कुर्बानी करते हैं उसके साथ खड़े होते हैं? माशाल्लाह। जो नहीं होते अब वो भी होंगे, ठीक है, एटलीस्ट आई नो। अच्छा, ये भी एक चीज़ थी जो मुझे तो सब कुछ ये भी पता चला, मैं बड़ा नालायक सा बंदा, कि वो लोग जो कुर्बानी करना चाहते हैं उनको चाहिए कि 10 दिन तक अगर वो चाहें तो उनमें शामिल होने के लिए वो अपने नाखून और बाल ना काटे, बट दिस इज़ मुस्तहब। मुस्तहब ये कि करें तो ठीक है, ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल ये कि हु इज़ माई इस्माइल, जो फाइनल हमारा क्वेश्चन है। हम वी वांट टू राइज टू द हायर स्पिरिट्स, राइट, एंड वी वांट टू लव अल्लाह, लेकिन we can only rise to the higher spirits when we actually sacrifice the love that is coming in the way to reach to that place. ऐसा ही है? Okay. So, अगर हर वो चीज़ which comes in between us and the righteous thing is actually our Ismail in this era. और इस ईरा के इस्माइल बहुत मुश्किल है, कभी कभी मुझे आपको तरस भी आता है, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे जब व्हाट्सएप लगा होता है, मैं पढ़ने बैठती हूँ, आर्टिकल वगैरह पढ़ रही होती हूँ, जब 3 दफ़ा वो टिंग करता है एंड आई एम डीप ट्रैक एंड देन आई कम बैक एंड आई रियलाइज ओ माय लॉर्ड, मैं इस उम्र में मुझे फोकस करना इतना मुश्किल है, तो बच्चों के लिए तो वाकई बड़ा मुश्किल है। सो द इजीएस्ट सोल्यूशन इज साइलेंस एवरीथिंग फॉर अ व्हाइल व्हेन यू स्टडी। बीच में जब आप ब्रेक लेते हैं तो उसमें अपनी चीज़ों को वापस खोलें, ठीक है। सो आप उसको सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, सिंपल। अब आप में से हर एक ने आज अपनी लिस्ट ऑफ इस्माइल्स बनानी है कि कौन सी चीज़ें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एज अ स्टूडेंट आपके इस्माइल्स फर्क होंगे, अगर आप क्लिनिशियंस हैं तो आपके इस्माइल्स फर्क होंगे, अगर आप मदर हैं तो आपके इस्माइल्स फर्क होंगे, अगर आप सिस्टर हैं तो आपके इस्माइल्स फर्क होंगे। ऐसा ही है? ओके, सो फाइनली समथिंग नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी, और वो क्या है? टू बी लाइक इब्राहिम। और इब्राहिम क्या थे, अल्लाह क्या कहते हैं उनके बारे में? उनको जो कहा गया उन्होंने कंप्लीटली सबमिट किया। सो दिस एक्चुअली गिव्स अस द स्पिरिट दैट वी शुड कंप्लीटली सबमिट, है ना। हम तो कभी रमजान के अलावा बाकी दिन में सोचते ही नहीं है सबमिशन के बारे में। सो दीज आर द डेज दैट आर एक्चुअली गोइंग टू इनलाइट द स्पिरिट ऑफ सबमिशन इन अस, ठीक है। फिर ईद का दिन आएगा तो उस दिन भी हम जब अपना कुर्बानी ज़बह करेंगे तो जहन में हमने अपने इस्माइल्स को आइडेंटिफाई करना है और हमने नियत करनी है। हमारे इस्माइल्स क्या है? हमारी वेल्थ, और क्या है? आप लोग के इस्माइल्स क्या है? नींद बहुत बड़ा इस्माइल है, फजर के बाद नींद स्पेशली, वेरी गुड, ये मैंने भी लिखी है आगे। और हाँ, व्हाट इज योर मोबाइल? ओके, व्हाट एल्स? हाँ, गुस्सा, ओह माय गॉड, दिस इज माय इस्माइल एज वेल। और फूड, कमिंग हियर वी हैव रिलेशंस, उसमें से सही क्या है, गलत क्या है, अपनी जिसे कहते हैं ना, आवर जॉब, आवर रैंक, आवर पावर, आवर फ्रेंड्स, आवर पेरेंट्स, आवर म्यूजिक। कितने लोगों को म्यूजिक छोड़ना आसान होता है? बहुत मुश्किल होता है, जनरली मुश्किल होता है। मैंने खुद छोड़ा था, इट वॉज डिफिकल्ट, दो many years back। फिर टू कंट्रोल योर गेज, अपनी गेज को लो रखना और अपनी टंग को कंट्रोल करना ताकि आप गलत ना करें। ये स्माइल है, बहुत बड़ा स्माइल है। इन एवरी टाइम योर टंग स्टेप्स, राइट। फाइनली आस्किंग, एग्जाम में बैठे यही एमसीक्यू पूछ लेते हैं, सिर्फ ज्यादा यही पूछ लेते हैं सिर्फ। इज इट योर स्माइल? Yes, it is your smile. You must accept it's a smile. And finally, your last, your self-image. अगर मैं कवर करूँगी तो मैं कैसे लगूंगी? नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। If I started covering, तो फिर मैं शादी के कपड़े कैसे पहनूंगी? है ना? How will I carry myself? तो ये सारे हमारे स्माइल्स हैं। अगर हमने दाढ़ी रखी तो नहीं, सोशली में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये उसके लिए स्माइल है, आप परेशान हो कि अपने स्माइल है, आपको नहीं पता, ठीक है। So everybody has their own smile जिनको उन्होंने स्टार्ट करना है, एंड वी ट्राई एंड होप कि हम उसको कर सकें, बट वी आर ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह पाक ने एक नोबल प्रोफेशन में चुना है, और अगर हम चाहें तो जस्ट कमिटिंग टू आवर प्रोफेशन वी कैन एक्चुअली अर्न दुनिया एज वेल एज आखिरत। बेस्ट पढ़ें, इन्वेस्ट करें अपनी एकेडमिक्स में, और इस नियत से देखिए, एक नियत यह है कि आप एकेडमिक्स में इन्वेस्ट करें सो दैट यू गेट अ पोजीशन। द अदर नियत इज यू इन्वेस्ट so that you know everything, और आपसे कोई मरीज मिसमैनेज ना हो, आपके पेशेंट मिसमैनेज ना करें, ऐसा ही है ना। So just by changing the niyyah of your learning, I mean you can earn anything or earn.
या फिर बुरा समूह बना के करना तो उन्होंने है, बट देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो एट एवरी डे वी हैव एन इस्माइल टू स्पॉन्सर फॉर अस. ठीक है, सो हमने जितने भी ये इस्माइल्स हैं जो हमारी इन वैल्यूज के बीच में आ रहे हैं, we are actually today going to take a niyyah to slaughter them inshallah, right? And आपका इस्माइल कौन है? Who is your sacrifice? Are you ready to put a knife between you and your Ismail? This is your decision. You are going to jot down your own list. मैंने अपनी लिस्ट बनानी है, आपने अपनी लिस्ट बनानी है, और फिर हम उस लिस्ट को लेके चलेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट हमने किसकी तरह है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे की तरह, जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि उससे अच्छा दीनदार कौन हो सकता है जो तारुफ अल्लाह की तरफ रखे और नेक किरदार भी हो और मिलत इब्राहिमी का इत्तिबा करे, जो बातिल से कतराने वाले थे और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील और दोस्त बनाया. मतलब अगर हम उस तरह होंगे तो फिर अल्लाह पाक हमें अपना खलील और दोस्त बनाएगा. राइट? सो it could be anything dear to you. You are going to sacrifice that, and on the day of sacrificing an animal, bear in mind that you are also sacrificing your dearest thing to follow the rules of Allah, to be a good clinician, to be a good student, to be a good daughter, to be a good sister, and it applies to your every circle of life. Right? So, और अल्लाह पाक हमने क्या कहना है कि ऐ मेरे रब, अब से ये चीज़ जो मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीज रही है, जो मुझे आप तक पहुँचने और आपकी खुशनुदी हासिल करने में मेरी रुकावट नहीं आएगी, और मैं इस चीज़ को स्लॉटर करूँगी. दिस इज़ द थीम ऑफ दिस ज़िलहज इंशाल्लाह, जो कि हम सब ने अपने साथ रखी है. राइट? और एंड में अगर आप कुर्बानी की दुआ को देखें तो उसमें अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि बेशक मैंने अपना चेहरा उसकी तरफ फेर दिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और वो मुश्रिकों में से नहीं हुई. एक आयत हम ये पढ़ते हैं. दूसरी, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है. तो जब अल्लाह के लिए होगा तो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन है, वो तो अल्लाह के बंदों के साथ है. अल्लाह को अपने बंदे सबसे ज़्यादा अजीज है. ठीक है? एंड इसका कोई शरीक नहीं, और इसी का मुझे हुक्म किया गया और मैं अपन मुसलमानों में से हूँ, मतलब मानने वाला. और फाइनली अल्लाह, ये तेरी ही तरफ से है और तेरी ही रज़ा के लिए है. शुरू अल्लाह के नाम से जो अल्लाह सबसे बड़ा है. अगर आप कुर्बानी की बात कितने लोगों ने कभी पढ़ी है अपनी कुर्बानी में? अच्छा, गुड. 1 2, तो मैंने भी नहीं पढ़ी थी. और आप गलत फहमी में ना हो कि हम फीमेल्स हैं तो हमें नहीं पढ़नी चाहिए. जो कुर्बानी कर रहा है उसको पढ़नी चाहिए. जिसकी अपनी कुर्बानी है, जैसे हम प्रोफेशनल फीमेल्स हैं, हमारी अपनी कुर्बानी होती है, तो हमें अपनी दुआ पढ़नी चाहिए और हमें अपने स्लॉटर के करीब रहना चाहिए पॉसिबल. थैंक यू सो मच. जज़ाकुमुल्लाह खैर. एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. आई होप हम सबको पॉइंट्स मिल गए तकदीर आपके छोटे छोटे पेपर पॉइंट्स. ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद देम? We are going to face them on our prayer mat, inshallah. Any questions, any queries? Any questions, any queries? जी बेटे. आपकी तो नहीं है ना? ठीक है, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ. बस आप कल के प्रोफेशनल होंगे इंशाल्लाह, तो कल आप प्रोफेशनल होंगी, आपकी अपनी इनकम होगी, आपकी अपनी कुर्बानी होगी. देखिए, मुझे नहीं पता था. आई जस्ट केम टू नो लास्ट ईयर when I actually prepared this lecture. मैंने ये बनाया था actually लेडीज क्लब के लिए, इस थीम पे कुछ बनाया था. When I read it that time, I came to know about these things. But I felt so bad about myself. You guys are so lucky, mashallah. You know so many things that we didn't know. Yeah, but you're better than us. That I'm sure. Any other query? I don't know. Hमारा time मेरा ख्याल है हम on time थे. Good. We had 1.5 hours, but I had planned to have 1 hour complete. Any query? Thank you so much for your patient listening, and we all hope. We all hope कि जो कुछ हमने सुना हम इस पर अमल करें. हमें एक सेशन की हदीस से महसूस है कि सरसब्ज़ शादाब रहे मेरा हर को उम्मती, जिसने मेरी बात को सुना, उस पर अमल किया, उसको आगे पहुँचाया. तो सुन तो हमने लिया.